Welcome to the YouTube channel of Legal Agent. Today we will be discussing one step and a few habits that can help you accelerate your preparation for CLAT 2027. अगर आप CLAT 2027 की तैयारी कर रहे हो तो ये एक स्टेप और कुछ आदतें आपकी प्रिपरेशन को बहुत हद तक सॉलिडिफाई कर देने वाले हैं. So without further ado, let's get into this session. So let's understand a few key details about your personality and this particular examination. So before starting preparation for any entrance examination or any competitive examination, you need to ask yourself one very simple question: why? Why does it matter to you? Why do you want to get there? Why do you want to do a particular thing? Why do you want to clear a particular examination? What is it? उसमें आपके लिए क्या है? So you need to ask yourself why, because this why will be the thing that will be motivating you throughout the course of your preparation. So you need to understand the price. The price है कि आपको देश की चुनिंदा टॉप लॉ यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का मौका मिलेगा. किस्मत अच्छी रही, स्कोर अच्छा रहा तो नालसार है ना, आपका NLSIU, NUJS, etc., depending upon your level of preparation, depending upon your score, and a few other factors, right? You also need to understand that this is a marathon, right? This is not a sprint. This is not something. See, motivation is very short-lived. If I'm motivated to go to the gym, for example, I might go for a couple of days, a couple of weeks, and fall out of this habit. But this is a marathon. You need to understand that the preparation for this particular examination is a marathon. So this cannot be just achieved by motivation. Motivation will help you. Motivation will help you getting things in motion. But you need to build systems, you need to build processes, you need to build yourself a framework which motivates you on that day where you're not feeling कि यार आज शायद स्किप कर दें तो चलेगा क्या. सो उस दिन आपका मोटिवेशन काम नहीं आएगा, उस दिन आपका वो सिस्टम, उस दिन आपको प्रोसेस काम आएगा कि यार नहीं, मैंने क्या फ्रेमवर्क डिसाइड किया, आई हैव टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, आई हैव टू डू दिस. Next, mindset. So for this particular examination, you don't need to be a genius to clear this examination. You just need to be bloody stubborn. You need to be very, very ziddhi to clear this examination. And this is not just applicable for CLAT 2027 examination, but for any examination, for any goal in your life, you need to be very stubborn. You need to push yourself on the days where you feel you're not motivated enough. You need to push yourself on the days where you feel कि यार आज मन नहीं है, आज हालत नहीं है, but you have to go. राइट. सो अर्जुन की स्टोरी एज वी ऑल नो कि यार उनको सिर्फ बर्ड की आंख दिख रही थी एंड दैट इज हाउ ही वाज एबल टू गिव दैट बुल्स आई वाला एकदम शॉट, राइट. सो यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड, टनल विजन जिसको कहते हैं. तो बिफोर एंटरिंग अगेन अ महाभारत रेफरेंस, तो चक्रव्यूह में घुसने से पहले आपको चक्रव्यूह को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि चक्रव्यूह से निकलने के लिए आपको चक्रव्यूह की सारी इंट्रिकेसीज मालूम होनी चाहिए कि कहाँ से वीक पॉइंट्स होते हैं, कहाँ पे डिफेंस आप ब्रीच करके निकल सकते हो. अभिमन्यु को ये नहीं पता था, इसलिए उनके साथ वो हुआ जो हम सब जानते हैं, राइट. सो आपके चक्रव्यूह की आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए. सो फॉर यू यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार इसमें जीके और लीगल का कितना वेटेज है ना, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग का कितना वेटेज है, और आपकी रैंक कहाँ से डिसाइड होने वाली है. क्यूटी इज दैट deciding factor for you, right? So maths, I know a lot of people do not like it inherently, but you have to know, you have to admit, you have to be okay with the fact कि भाई शायद आपकी मेरिट, शायद आपका स्कोर इससे बहुत हद तक इन्फ्लुएंस होने वाला है, तो इसको अपन हल्के में तो नहीं ले सकते, right? So you need to lay special emphasis on this, practice some number of questions every day, and just be on top of it. It's not वेरी हाई लेवल का 10वीं तक का ही आपका लगना है मैथमेटिक्स, तो वहां की अपने को कुछ चुनिंदा एरियाज की प्रैक्टिस बहुत सॉलिड रखनी है. डोंट बॉयल द ओशन. डोंट बॉयल द ओशन आप अगर नहीं समझते हो तो आपको यू डोंट हैव टू डू एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, राइट, बिकॉज इट विल गेट ओवरवेलमिंग फॉर यू एंड नॉट इन अ गुड वे. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या करना है और कितनी एनर्जी कहाँ पे इन्वेस्ट करनी है. तो रूल बहुत सिंपल है यार, इंग्लिश, जीके और लीगल बहुत बहुत वास्ट है. यू ओनली नीड टू स्विम इन द स्पेसिफिक एरियाज, है ना. तो जितना इंपॉर्टेंट है, जितना रिक्वायर्ड है आपको भाई, आगे की पढ़ाई में आपकी लीगल रीजनिंग काम आएगी. जब कॉलेज आप पहुंचोगे उसके पहले आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है
जितना आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट? आपको PYQs देखने हैं, यू हैव टू एनालाइज, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कितनी डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट? ट्रेंड एनालिसिस इज वन थिंग, बट अंडरस्टैंडिंग कि किस डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. You have to ensure that you are focusing on skill and not just trend. तो PYP जब आप देखते हो तो मोस्टली आप ट्रेंड एनालिसिस के लिए देख रहे हो. यहाँ पे जब आप PYP देख रहे हो तो मेरा सजेशन ये है कि ट्रेंड एनालिसिस के साथ साथ फोकस ऑन बिल्डिंग योर स्किल्स, बिकॉज जैसे फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक रीजनिंग आ गई थी 2026 में, सो इट काइंड ऑफ लाइक सरप्राइज्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु वर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस चेंज इन ट्रेंड, है ना? वो पैटर्न डिसरप्ट हुआ तो बच्चे वहां पे अटक गए, उनको लगा कि यार ये क्या हो गया. बट यू नीड टू प्रिपेयर योर स्किल्स दैट कैन हेल्प यू ओवरकम दीज डिसरप्शंस इन ट्रेंड्स. सो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट? तो PYPs को हमें एनालाइज करना है अपनी इंसाइट बिल्डिंग के लिए, ट्रेंड एनालिसिस के लिए, स्किल बिल्डिंग के लिए और अपनी डेप्थ की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा पार्ट कितनी डेप्थ में पढ़ना है. तो कुछ टास्क आटे की मिल, है ना, फ्रॉम द रीस्टार्ट स्टोरी 12th फेल. तो आटे की मिल में वो क्या करता था, है ना, पूरे दिन काम करने के बाद पढ़ाई करता था. ही वुड डू रिगरस लेबर थ्रू आउट द डे एंड देन स्टडी एट नाइट, जो भी उनको समय मिल पाता था उसमें. तो आपके लिए टास्क क्या है? रीडिंग is very important for you because it will help you build skills that you will need in multiple aspects of your examination, right? So English, legal और logical की आपको रीडिंग करनी है ना, जिससे आपकी स्पीड एनहांस हो. The source has to be newspaper editorials, है ना? It's like killing two birds with one stone, है ना? आप मल्टीपल चीज़ों की आपकी तैयारी हो रही है while you are रीडिंग द एडिटोरियल. आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ रही है, आपकी कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी हो रही है. एट द सेम टाइम यू आर बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, दैट विल हेल्प यू विद द जीके एंड करंट अफेयर्स वाला पार्ट, राइट? सो किलिंग मल्टीपल बर्ड्स, नॉट जस्ट टू बर्ड्स विद वन स्टोन. एंड मतलब क्लैट is a bookworms examination and not just CLAT. This field of law is, मतलब आपको यहाँ पे जीवन भर पढ़ना पड़ेगा, जीवन भर you will have to stay updated with whatever is happening in this field, directly may be related to your expertise or not, but you will need to be updated at all times. लीगल रीजनिंग की बात करते हैं तो द बिग फोर जो लीगल रीजनिंग के हैं वो है लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार आपको प्रिंसिपल को फैक्ट्स पे अप्लाई करना है और फिर उस बेसिस पे आपको आपके क्वेश्चंस लगाने, उस बेसिस पे आपको आपकी तैयारी करनी है ना? कमिंग टू रैंक डिसाइडर, है ना, जो मैंने आपको बताया भले ही 10% कॉन्स्टिट्यूट करता है आपके ओवरऑल एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस के, बट दैट 10% इज अ लॉट बिकॉज दैट चेंजेस एवरीथिंग, दैट डिसाइड्स योर रैंक, दैट डिसाइड्स योर मेरिट, है ना? तो लाइक यस एग्जैक्टली लाइक आई सेड कि डिसाइड्स योर रैंक, डिसाइड्स द मेरिट. 10th का ही है मोस्टली रेशियोज, परसेंटेज, एवरेजेस. If you're practicing on an average 5 to 6 questions on a daily basis, all you have to do is you have to do it consistently. It is as simple as that. It is not a sprint, it's a bloody marathon that you need to prepare yourself on a daily basis. Build structures, build processes, build systems that inspire you to get through this one day at a time. Again, taming the unpredictable. लॉजिकल रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग के मिक्स की तैयारी करनी है. यू हैव टू बी, मतलब जो ट्रेंड है, जो डिसरप्ट हुआ है क्लैट 2026 में, यू हैव टू स्टे ऑन टॉप ऑफ इट, है ना? पजल्स, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंसिंग, इस पे इसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं. आर्गुमेंट्स, प्रेमाइज, कंक्लूजन, प्रैक्टिस पैरेलल रीजनिंग, ये सारी चीजें हमें डे टू डे प्रैक्टिस करना है. दिस वी आर टॉकिंग अबाउट हैबिट्स, राइट? अभी वी विल स्टिल गेट टू दैट वन स्टेप दैट विल हेल्प यू बूस्ट योर CLAT 2027 preparation. जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए आपको अप्रोच बहुत सिंपल रखनी है. यू हैव टू जस्ट कनेक्ट द डॉट्स, है ना? फॉर एग्जांपल, इफ समथिंग इज हैपनिंग, इफ दिस इज द ट्रेड डील बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, you need to understand that this is just on the surface, but there is a lot happening which is leading to the background of this. This could be something ki pressure of US, है ना? US के यूरोपियन यूनियन के साथ रिलेशन विद रिगार्ड्स टू ग्रीनलैंड, है ना? यूएस के सैंक्शंस ऑन इंडिया. सो ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग व्हिच इज लीडिंग टू दिस. सो यू आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दिस.
You need to have a context of what is happening. That will help you with a lot of questions that might be based around that. ठीक है, तो स्टेप 1 की बात करते हैं, और अभी अपन सिर्फ जैन से लेके जून तक की बात करते हैं ना। उसके बाद फिर एक और स्ट्रैटेजी वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा जहाँ पे हम आगे की बात करेंगे। बट अगर जैन से जून की बात करें तो आपकी स्टेप्स होनी चाहिए कि आपको पहले सिलेबस की बहुत थरो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है द फर्स्ट मंथ ऑफ योर प्रिपरेशन, है ना। यू हैव टू कंप्लीट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, है ना, फॉर लीगल ग्रामर एंड क्यूटी के बेसिक्स। जीके के लिए आई वुड हाईली रिकमेंड स्टार्टिंग अ ट्रैकर। डेली एक कोई नोटबुक में अपने जो भी आप एडिटोरियल से पढ़ रहे हो या फिर डेली हिंदू एनालिसिस देख रहे हो हमारे चैनल पे, तो उसके नोट जरूर बनाओ, है ना। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द हैबिट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, वन ऑफ द हैबिट्स is reading the newspaper daily because it is helping you in multiple aspects of your CLAT 2027 preparation. एक आउटकम चेक जो मैंने आपके लिए प्लान किया है वो ये है कि बाय जून वी शुड बी स्ट्रगलिंग विद स्पीड एंड नॉट कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो जून तक हमें अपनी तैयारी ऐसी रखनी है कि वेयर वी आर फोकसिंग ऑन अटेम्प्टिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस, है ना, एंड मिनिमाइजिंग द एरर्स एंड नॉट इट शुडंट बी कॉन्सेप्ट बेस्ड. सो हाउ डू यू नो यू आर रेडी, राइट। तो आपने क्या क्या किया, आपके पास स्ट्रैटेजी आ गई, आपके पास किताबें हैं, आपके पास रूटीन है, बट विदाउट टेस्टिंग, without I would say appearing for a mock test, you are nowhere near to I would say clearing this examination. And as the OG of CLAT industry, Herser, says that you cannot improve what you do not measure. You do not improve what you do not track. So you need to track it, and to track it, we are coming up with an all India open mock, which will be the largest ever all India open mock for CLAT 2027 on 8th of February. 8 फरवरी को संडे को आपका ऑल इंडिया ओपन मॉक रहेगा, जो कि 50 से ज़्यादा ऑफलाइन सेंटर्स में रहेगा एज वेल एज ऑनलाइन रहेगा. फॉर लीगल एड स्टूडेंट्स इट्स एब्सोल्युटली फ्री. ऑल यू नीड टू डू इज register yourself in the link that is given in the description box and the pinned comment. आप वहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं, and you can choose your own mode of appearing for this all India open mock. It could be online, it could be a center of your preference. आप वहाँ से कर सकते हैं. For other students you need to register yourself and then make a payment of 99 rupees. Now let's understand a few other things. कि why take this test? Why is it so important? So it's important to benchmark where your preparation is right now. It will give you a simulation कि यार असली CLAT 2027 एग्जामिनेशन कैसा होने वाला है. पेन एंड पेपर बेस्ड रहेगा, तो वो अगर मैं ऑफलाइन सेटअप में दे रहा हूँ तो आपको वो पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस मिलेगा. सो इट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर यू, है ना. इट्स एन अर्ली डायग्नोसिस. तो आपको पता चलेगा कि यार अभी आपकी तैयारी का स्तर क्या है, आपको किन एरियाज पे इम्प्रूवमेंट करना है, कौन सा आपका वीक एरिया, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है. इज टाइम मैनेजमेंट एन इशू फॉर यू, सो यू विल अंडरस्टैंड वेयर योर गैप लाइज. Moving on, a very important thing that I personally practice and preach, and that is the mock is just 10%. What you learn out of it is the rest 90% that adds value. So एक मॉक की एक मिस्टेक नोटबुक बनाओ. हर मॉक जो भी आप दे रहे हो, चाहे आप हमारा ऑल इंडिया ओपन मॉक दो या फिर आप कोई भी वीकली मॉक दे रहे हो हमारे सेंटर्स पर, आप उस मॉक में क्या गलतियां कर रहे हो वो लिखो. अंडरस्टैंड इफ इट इज अ कॉन्सेप्ट बेस्ड मिस्टेक, इफ इट वाज अ टाइम मैनेजमेंट मिस्टेक, इफ इट इज अ मिस्टेक ऑफ एनी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द एग्जामिनेशन, उस सेक्शन में पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस में आप अटक रहे हो तो वो करो एंड इम्प्रूव करो नेक्स्ट टाइम. एंड इफ यू आर नॉट सक्सीडिंग, इफ फिर भी आप वो गलती कर रहे हो तो देन रीस्टार्ट अगेन एंड यू नीड टू keep going on in this loop again and again and again n number of times to help you reach where you want to be. So this is non-negotiable. This is that one step and a few habits that will put you at 1% of the people who are going to excel in this examination. Now I'll just give you a few reality checks. So you will fail in mocks, है ना, your numbers will fluctuate. 4 लोग क्या कहेंगे, 4 दोस्त क्या कहेंगे, यार
ये मेरी क्रश है, इसके मार्क्स मेरे से ज़्यादा हैं यार, उसको मैं कैसे अपना स्कोर बताऊँ, वाइस वर्सा। कुछ फ्रेंड्स हैं, पीयर प्रेशर है, घर वाले हैं। तो दिस इज inevitable, right? Scores will fluctuate. It is inevitable. You might not succeed in a few mocks. That is also inevitable. But what we need to understand is that we need to come out of it. है ना? Till death, no, I would say failure is final, right? And failure is not the end; it is the data. So as long as you're making learnings out of whatever you are practicing, whatever you are attempting, that is what matters, right? नॉलेज गैप है अगर आपका, सो यू गो बैक टू योर बेसिक्स, थ्योरी सिली मिस्टेक्स है, देन यू फोकस ऑन योर अटेंशन स्पैन, एंड इफ यू आर पैनिकिंग यू नीड टू फोकस ऑन योर माइंडसेट. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू कीप होल्ड ऑफ, नोट ऑफ, कि यार हमें किस तरीके से करना, बिकॉज योर माइंडसेट is what will set you apart from anyone else who is preparing for this examination. तो अब हमें क्या करना है, और immediate action plan, what it should ideally be, it should be registering for the All India Open Mock to happen on 8th of February, है ना. न्यूज़पेपर रूटीन जो मैंने आपको बताया वो आप फॉलो करोगे. उसके बाद यू विल ट्रीट दिस ओपन मॉक एज योर फर्स्ट रियल अटेम्प्ट, और इससे हताश, निराश, परेशान नहीं होना है. इससे हमें सिर्फ लर्निंग लेनी है. एंड डोंट फियर स्कोर्स, सीक डेटा, डेटा विल गिव यू इम्प्रूवमेंट. And last but not the least, you do not improve what you do not measure, you do not improve what you do not track. So do not forget this, and appear for the All India Open Mock on 8th of February 2026. For any more information, stay tuned to our channel, check out the link in the description box, call us on the IVR, and stay tuned to our channel for more such videos. All the best.